Welcome to the theatre session of Virsa. I am Jyoti Upadhyay, your theatre coach, and you can call me Miss Jyoti, Jyoti ma'am, both works. So let's do a quick recap of our last session, and then we'll begin with the new things, okay? So in the last session, we were talking about street theatre. All you can do is you can start warming up yourself. Yeah, so let's walk and talk. Yes, so in the last session, we had discussed about expressions and gestures, three major expressions and some important gestures for street theatre. We had talked about how our volume should be and how exaggerated the expressions and interactions are required in street theatre, okay? Now let's start jogging. Jog, 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 everybody, jog, jog, jog. Yes, come on. Show me your fist by your side and start jogging. Jog, jog, jog. Perfect, perfect, perfect. I hope you all practiced your last lesson with your teachers and your friends and you're ready for something new today. Yeah? Now let's run, everybody. Okay, let's run. You can run at your place. You can run around in the space that you have. You can go circle and circle. You can crisscross each other like, you know, like how it happens in the crowd. Come on, and let's be a part of it. Very nice. Now, put your hands up and say hi. Look at each other. Look at each other. Look at your friends and say hi. Very nice, very nice. Keep running, keep running. Just rush, okay? You're in a hurry and you're running and you're just waving at each other. Hi, nice meeting. Okay, bye. Lovely, lovely, lovely. Go running, go running, go running until you start punting. I started punting. Clap for yourself. Very nice. Clap for yourself, everybody. Clap for yourself. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. So, the last class was all about a glimpse of street theatre, right? And we were talking about calling people, how we can call people, and how we can start our interaction with them, how we need to stand in a circle facing everybody in the audience, because it's not a stage that audience is sitting all in front of you, but they are scattered, they are everywhere. You need to interact with everybody. So when you're starting your street play, okay, you need some instrument, some jingling instrument, some, you know, some duff kind of thing that you can bang and grab everybody's attention and start with the lines, suno, 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 bhaiya, suno re, suno, bhaiya. So if you repeat after me, it'll be helpful. You'll be able to retain in your mind. You'll be able to remember it. Please repeat after me. Suno, 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 bhaiya. Please repeat. Very nice. Suno re, suno bhaiya. Okay, so the throw of your voice comes from your tummy. Okay, sometimes you also use your crown sound. Your crown sound is the loudest sound ever. Okay, so let's, like how you scream, how you screech, that's your crown sound. Let's do it one more time. Suno, suno, suno bhaiya, suno re, suno bhaiya. अभी गवर्नमेंट ने कुछ नया कानून बनाया है, सो उसको हम बताने के लिए कि नया कानून बना है, अवेयरनेस जगाने के लिए हम ऐसे कुछ मेलोडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्ले की बिगिनिंग में. देन वी हैड डिस्कस्ड कि जो स्ट्रीट थिएटर है वो मेजरली लोगों को यू नो एक क्रांति लाने के लिए इस्तेमाल होता है कि देयर इज समथिंग मेजर हैपनिंग, या तो उसके अगेंस्ट या उसके फेवर में हम लोग जनरली स्ट्रीट थिएटर करते हैं. ओके, सो कॉल्स लाइक सुनो जी सुनो जी सुनो जी सुनो जी goes very well
with your concepts. I mean, this you can use anywhere. It's so versatile. But when it comes to exam ka pressure, okay, so today we are exploring that we are students एंड हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है, हमारे ऊपर टीचर से प्रेशर होता है, हमारे ऊपर प्रिंसिपल से प्रेशर होता है, हमारे ऊपर पेरेंट्स से प्रेशर होता है, हमारे ऊपर अपने पेयर्स का प्रेशर होता है. ओके अगर हम अच्छे बच्चे हैं और हमें कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आते हैं तो सबको लगता है कि हाँ ये तो फर्स्ट आएगी या आएगा. ओके सो वो प्रेशर किसी को दिखता नहीं है, बट हमारे दिमाग में हमें बहुत यू नो इट ओवर पावर्स our good emotions sometimes. So उसको describe करने के लिए कि listen people, we are facing all this, don't pressurize us more, हमें पता है हम अच्छे नंबर लेके आएंगे वगैरह 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 वगैरह. इन सारी चीज़ों को explain करने के लिए आप एक street play करेंगे अपने स्कूल में. Okay, you can choose any time of the day and if you choose the time of your exams, सोने पे सुहागा. Okay, so how you can begin? Exams are more about scoring, showing up, yeah. So we'll start with the word number. Number लेकर आओ, ठीक है? So we can clap. Number लेकर आओ भैया, number लेकर आओ. Number लेकर आओ भैया, number लेकर आओ. Okay, you can go to your classes और या क्लास असेंबली के टाइम पे या स्कूल असेंबली के टाइम पे, मॉर्निंग प्रेयर के टाइम पे प्रेयर ख़त्म हुई और आप अचानक से यू नो आप लोग अलग अलग कॉर्नर्स से साथ में आते हैं, स्टेज पे चढ़ जाते हैं और ऐसे शुरू करते हैं. ओके टारगेटिंग योर ऑडियंस. यानी शो मी बोथ योर हैंड्स. अच्छा क्लैप्स हमने पिछली कुछ क्लासेस में क्लैप्स के बारे में सीखा था. अभी रिसेंटली मैंने अपनी एक किसी थिएटर सेशन में बच्चे ऐसे क्लैप कर रहे थे. ओके और कुछ ऐसे कर रहे थे. सो दिस इज नथिंग, दिस कैन नॉट हेल्प यू. ऐसे क्लैप का मतलब कोई साउंड ही नहीं आएगा. सो यू कीप योर वन हैंड blade hand, other hand diagonal, okay, and on your palm you do the banging and you will hear the sound. Okay, street theater में claps का बहुत major role होता है. ठीक है, clap clap. Can you please repeat that? Can you please repeat the action? Show me both your hands. Up, up and down. And up and down and up and here and clap. तो हमें ऐसे clap नहीं करना है, ठीक है, हमें करना है diagonal clap. Okay, 1 2 3 4. Can you hear the sound of clap? It's echoing. So आप you can make a curvy hand and create a gap here ताकि जब आप bang करो तो echo का sound आए. It's very technical. Okay, let's start. दोनों हाथों को कर्व करेंगे. Everybody do that. I want to see everybody involved. Show me both your hands curved and 45 degrees. Clap, 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 clap. अब इस क्लैप के साथ आप लिरिक्स को, आपके जो भी जिंगल्स हैं नुक्कड़ नाटक के, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे सबको देखते हुए. आई कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबको देखो और क्लैप क्लैप क्लैप. तो पहली तो एक्सरसाइज आपकी ये होगी कि आप आई कांटेक्ट स्टैब्लिश करना सीखें, फिर आप क्लैप करना सीखें या आप कॉल करना सीखें. ठीक है, कॉल हम ऐसे नहीं कर सकते. ओके, वी कैन से कम, नो, वी हैव टू कॉल द बिगर ऑडियंस. सो वील ओपन आवर आर्म्स. ओपन योर आर्म्स एवरीबॉडी, ओपन योर आर्म्स, कम ऑन, very nice. And hey, nice. I was about to say that until I see everybody opening their arms, not going to move forward, but you did it. Well done. Open your arms and start calling people. Come, come, come. Okay, so instead of saying come, come, you use your jingles. Okay, let's do it from the beginning. Number lekar aao bhaiya, number lekar aao. You need to repeat after me. Okay, I'm a little strict teacher. I want my students to repeat and learn and remember and apply it in their life. Okay, otherwise there is no use of sitting in a class or learning anything. Okay, so repeat. As long as you repeat, you'll remember it. 1 2
3 4 claps. नंबर लेकर आओ भैया, नंबर लेकर आओ. You need to be loud enough so that I hear you clearly. Come on, 1 2 3 clap. नंबर लेकर आओ भैया, नंबर लेकर आओ. नंबर लेकर आओ भैया, नंबर लेकर आओ. अपनी औकात दिखाओ, अपनी औकात दिखाओ. ओके, सो क्या है कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका हम थोड़ा सा लीवे ले लेते हैं स्ट्रीट थिएटर में, क्योंकि हमें ऐसी लैंग्वेज यूज करनी होती है जो लोकल पब्लिक जिससे फैमिलियर हो. ओके, सो आप अगर स्कूल में कर रहे हैं तो औकात की जगह अपनी कैलिबर दिखाओ, अपना you can use any word that which is a synonym of caliber, like that. Okay, and then शर्मा जी का बेटा देखो. ओके, एनी एग्जाम्पल, कुछ भी आप रैंडम यूज कीजिए जिससे आपकी लोकल पब्लिक रिलेट करे. ओके, जैसे शर्मा जी का बेटा कितना है होशियार, तुम भी बनो ऐसे, मत करो इनकार भैया, मत करो इनकार. ओके, सो ऐसा हमको सोसाइटी में बोला जाता है. हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, हमारे रिलेटिव्स बोलते हैं, और कई बार तो हमारे बड़े सिबलिंग्स भी बोलते हैं कि देखो उसकी सिस्टर को देखो, उसके भाई को देखो, फर्स्ट आया है, खुद को देखो, फर्स्ट आ जाओ कभी. सो उस चीज को हम लिरिक्स में कैसे वीव इन कर सकते हैं और कैसे ऑडियंस को प्रेजेंट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगा तो हम शर्मा जी वाला लिरिक्स उठाते, बिकॉज दैट्स रियली फेमस. या कि शर्मा जी का बेटा, वर्मा जी का बेटा. लेट्स डू दैट. शो मी योर हैंड्स, प्लीज स्टैंड अप, यू कैन नॉट सिट. Stand up everybody. Stand up, stand up, stand up. Very nice. Good girls, good boys. Wonderful. Do it from the beginning. How would you do it? You will have legs apart. अपने legs को ऐसे बांध के नहीं खड़े होंगे, वरना हम ऐसे एक्शन करते करते गिर जाएंगे और अच्छे भी नहीं लगेंगे. Okay, so you will have your legs apart ताकि देखने में लगे कि you own the place. This circle is yours. अब इस सर्कल में आप कुछ भी कीजिए, किसी से भी बात कीजिए, पीपल आर गोइंग टू हियर यू. ओके, लेट्स डू इट वन मोर टाइम. नंबर लेकर आओ भैया, नंबर लेकर आओ, नंबर लेकर आओ भैया, नंबर लेकर आओ. से 2 times, 2 times, 3 times, मल्टीपल टाइम्स. जितने टाइम में आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस का अटेंशन आप ग्रैब कर सकते हो, यू नीड टू डू दैट. यू नीड टू ग्रैब माई अटेंशन फॉर नाउ. कम ऑन, 1 2 3 स्टार्ट. Very nice. You need to open your arms. Very nice. And नंबर लेकर आओ भैया, नंबर लेकर आओ, अपनी औकात दिखाओ, तुम अपनी औकात दिखाओ. नंबर लेकर आओ भैया, नंबर लेकर आओ, अपनी औकात दिखाओ, तुम अपनी औकात दिखाओ. शर्मा जी का बेटा कितना है होशियार, तुम भी बनो ऐसे, मत करो इनकार भैया, मत करो इनकार भैया, मत करो इनकार, मत करो इनकार भैया, मत करो इनकार, मत करो इनकार भैया, मत करो इनकार. एवरीबॉडी प्लीज जॉइन इन, जॉइन इन, जॉइन इन. तो ये हमारा एक सीन हो गया. ठीक है, उसके बाद दूसरा सीन. ओके, सीन अच्छा, स्ट्रीट थिएटर में एक सीन से दूसरे सीन में जाने के लिए जो ट्रांजिशन होता है वो डफ का हो सकता है या कोई जिंगल हो सकता है. ओके, देखें क्या होगा आगे, और anything that comes to your mind. So transition important है ताकि आपकी ऑडियंस को पता चले कि ये सब कुछ एक सेक्शंस में हो रहा है. ठीक है, पहले ये घटना हुई, फिर ये घटना हुई, फिर ये घटना हुई, और फिर ये कंक्लूजन रहा. ठीक है, सो ये तो हो गया हिंदी की बात, मतलब हिंदी का प्ले अगर आप ऐसे करेंगे, स्ट्रीट प्ले अगर करेंगे. ओके, अब हम दूसरा सेक्शन जो है वो थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा लैंग्वेज को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं. ओके, सो दूसरा सीन जो हम दिखाएंगे वो दिखाएंगे कि बच्चे हैं क्लासरूम में या शायद अपने घर में और वो पढ़ रहे हैं एंड दे आर फीलिंग स्ट्रेस्ड. ओके, शायद उनका रिजल्ट आया है या टेस्ट चल रहे हैं, कुछ ऐसा है. ठीक है, सो एक बच्चा उठता है और वो डायलॉग बोलता है कि each red mark on my test paper stings.
ओके ये बहुत एग्जैजरेटिंग डायलॉग हो जाएगा कि मतलब मेहनत कर रहा हूं मैं, नंबर नहीं आ रहे, इसलिए मुझे अपना टेस्ट पेपर देख के नफरत सी हो रही है, घिन आ रही है मुझे इस टेस्ट पेपर से. ओके और यू कैन ओपन योर सीन लाइक, why does success feel so far away? You can repeat after me. मैंने कहा था स्ट्रीट थिएटर है, एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशंस होंगे. सो क्लोज हैंड्स, ओपन योर आर्म्स and with wide jaws and wide eyes आप ये लाइन बोलेंगे और जितना तेज बोल सकते हैं उतना तेज बोलेंगे. ओके why does success feel so far away? I want you to repeat. आप ये रिपीट कीजिए तभी हम आगे बढ़ेंगे बिकॉज ओके इसका हमें पूरा पूरा फायदा उठाना है. Hands here. Show me close hands. Very nice. Open your arms wide. Shoulder level से थोड़ा सा आगे. Very nice. अब इसको शेक करो. 1, 2, 3. जैसे हमारे हाथ में पानी वो हो जाता है ना, ऐसे झाड़ते हैं. ओके वैसे ही ये है हमारा स्ट्रेस. ओके और इस स्ट्रेस को हमें झाड़ना है. 1, 2, 3. ओके डिस्गस्ट एक्सप्रेशन होना चाहिए आपके चेहरे पे. Why does success feel so far away? Very nice. Do it again and be loud. 1, 2, 3, action. So far away. Very nice, very nice, very nice. Why does success feel so far away? अभी दूसरा बच्चा, not necessary कि एक ही बच्चा सारे डायलॉग बोले. ओके स्ट्रीट थिएटर अभी एक ही बंदा इतना तेज तेज बोलेगा तो उसको दिक्कत हो सकते हैं ना वॉइस कॉर्ड में. सो वी गिव डायलॉग्स स्प्लिट टू एवरीबडी. ओके सो एक बच्चे ने बोला why does success feel so far away? दूसरा बच्चा बोलेगा I try, I fail, I try each day. अपना दर्द दिखाओ. ओके बिकॉज अल्टीमेटली हम यही एक्सप्रेस कर रहे हैं कि देखो भाई हम बहुत प्रेशर में हैं. सो अपना वो प्रेशर इन डायलॉग्स के थ्रू दिखाएंगे. ओके सो वन मोर टाइम. Why does success feel so far away? I try. ओके एक हैंड को शेक करते करते ऑडियंस को एड्रेस करो. I try. उनसे आई कांटेक्ट स्टैब्लिश करो. I fail. ओके क्योंकि फेल एक ये फेलियर वाला एक्सप्रेशन है तो हम ऐसा होता है कि हम कई बार छुपना चाहते हैं और फेस नहीं करना चाहते. सो अपना जो एक्शन और इमोशन इस टाइम हम दिखाएंगे उसमें हम इसको पोर्ट्रे करेंगे कि बिकॉज आई फेल आई डोंट वांट टू शो माय फेस ऐसे करके. ठीक है सो बताओ कि आई ट्राई, मैं बहुत कोशिश करती हूँ. I fail, but फेल हो जाती हूँ कभी कभी. I try each day. उसके बावजूद मैं हर दिन ट्राई करती हूँ. फिर भी टेस्ट पेपर. अभी जो तीसरा बच्चा होगा उसके हाथ में पेपर होगा. ओके अब वो पॉइंट करेगा. Each red mark on my test paper stings. ठीक है मुझे घिन आ रही है इससे, मैं देख नहीं पा रहा हूं. ओके each red mark on my paper test paper stings. Please repeat. Hold the paper in your left hand. Come on, let's do it. Hold the paper in your left hand. Right hand pointed finger. Point to the red marks. Okay कोई एक रेड पेपर पे बहुत सारा रेड मार्क्स ऐसे सर्कल सर्कल कर देना. जैसे कभी मेरे मैथ्स के टेस्ट पे ना बहुत सारे ऐसे सर्कल्स आते थे. सो मेरे को तो वही दिख रहा है अभी. ओके लेट्स पॉइंट टू ऑल द सर्कल्स एंड से ईच रेड मार्क ऑन माय टेस्ट पेपर स्टिंग्स. घिन आ रही है. ओके डिस्गस्टिंग. वी कांट सी दैट. प्लीज डू दैट अगेन. Paper, finger, point, dialogue. Each red mark on my test paper stings. अभी क्या है इतना मेहनत किया पर
टेस्ट पेपर जो है उसमें रेड मार्क्स आ गए, सो हम क्या बोलेंगे, कैसा फील होता है हमें? लाइक एवरीबॉडी प्लीज जॉइन इन हैंड्स। अब हैंड्स को फिस्ट बना के नीचे फेंकता है, ओके अभी क्या, ये हमारा स्ट्रेस है, इसको हमने फेंक दिया। बट डायलॉग्स में क्या बोलना है हमको? लाइक shattered hopes with broken wings। लाइक शैटर्ड होप्स। होप्स क्या होती हैं? हम कुछ भी काम करते हैं ना, तो हमें अपने से रिजल्ट की होप होती है कि हाँ आज मैंने मैथ्स का पेपर अच्छे से प्रिपेयर किया है, सारी थ्योरम रेडी की है, सारे फॉर्मूलाज रेडी किए हैं, रात भर प्रैक्टिस की है और अब तो मेरा रिजल्ट अच्छा ही आएगा, ये होप है। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हैं, होप कॉन्फिडेंस। ओके सो वो जो होप है वो शैटर्ड हो गया। ओके शायद कोई एक फॉर्मूला गलत लिख दिया मैंने, या शायद कंक्लूजन गलत लिख दिया, गया। ओके सो शैटर्ड होप्स, ब्रोकन विंग्स। ओके जब भी हम लिरिक्स लिखे ना तो हमें दिस इज फॉर टीचर्स, आजकल बच्चे भी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, सो फॉर किड्स ऑल्सो, जब भी आप स्क्रिप्ट लिखें तो दो चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो आपकी ऑडियंस कैसी है, उस ऑडियंस की लैंग्वेज कैसी है। अगर आप ग्रेड 4 के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो क्या आपकी क्लास जो है उस वोकैबुलरी को, उस इमोशन को, वोकैबुलरी के मतलब को समझ पाएगी, उसको इनैक्ट कर पाएगी या नहीं, या मतलब छोटे बच्चे के लिए लिख रहे हैं या बड़े बच्चे के लिए या कॉलेज के लिए। सो ये आपको एक तो वोकैबुलरी का ध्यान रखना है। ओके दूसरा कि कॉन्टेक्स्ट। अब ग्रेड 4 का बच्चा या ग्रेड 3 का बच्चा इस कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पाएगा कि अगर रिजल्ट खराब हो गया तो फ्यूचर खराब हो जाएगा। ओके क्योंकि अभी उसके साथ ऐसा हुआ नहीं है, बट अ चाइल्ड स्टडिंग CA, इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट, ओके व्हाटएवर, वो समझ पाएंगे। सो आप अपना कॉन्सेप्ट और वोकैबुलरी एज अप्रोप्रिएट, ऑडियंस अप्रोप्रिएट रखिए। ओके ये मैं जो लेके आई हूँ मेरे ख्याल से एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आई थॉट लेट मी एक्सप्लेन इट। ओके सो ब्रोकन विंग्स का मतलब क्या है? जब एक बर्ड होता है उसके विंग्स काट दें तो वो फ्लाई नहीं कर सकता। ओके सो हमारे को ऐसा फील हो रहा है कि ये जो हमने इतना एफर्ट लगाया, जो हमारे विंग्स बन सकते थे, वो रेड मार्क्स की वजह से चले गए हैं। ओके सो इस मूड को, इन सारी चीज़ों को, इन सारे इमोशंस को ध्यान में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए, अब उसे हम बॉडी और फेस पे लेके आएंगे। ओके और ये माध्यम बनेंगे हमारी कम्युनिकेशन का। मैं सीधे बात करने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम मत लो, ओके ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट खेल खेल में आप बोल सकते हो कि थोड़ा इजी एग्ज़ाम बना दीजिए या समथिंग बेटर। ओके सो लेट्स डू इट, लेट्स डू द इंग्लिश पार्ट। ओके अभी आप खड़े हो जाएंगे, प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप, stand up, put your hands up and wave, say hi, open your mouth and say hi. Very nice. Show me your right hand in front. Hello, open your mouth, say it loud, hello. जोर से बोलना है, जोर से बोलना है। ओके कोशिश करें जोर से बोलने की। हेलो। ओके नाउ join your hands and say and your feet also. Namaste. Well done. Namaste. Now hands here. Sat Sri Akal. Say it loud. Sat Sri Akal. Everybody needs to do that. Come on. I want everybody to do it and say it loudly. Hands here. 1, 2, 3 and say Sat Sri Akal. Lovely. Now, curvy hand here.
आदाब. Well done. That's Jai Hind. Well done, well done, well done. So बच्चों खेल खेल में जितना हम सीख लें उससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो. Okay, let's do the test paper one. Hold the test paper. Test paper in your left hand. Pointed fingers. Pointed finger, right hand pointed finger, left hand test paper. Point to the test paper. हमारे test paper पे ना बहुत सारा red मार्क है. अब उसे पॉइंट करना है और हमें अपना दुख जाहिर करना है. ओके ओके से अभी एक्सप्रेशंस को कॉपी करने की कोशिश करना. से each red mark sad, each red mark on my test paper stings. हंसना नहीं है. No. It's a disgusting face. Stings. Sad face. Disgusting. Okay. Very nice. Good job. अभी उसको फेंक देना है. Like shattered hopes and broken wings. Well done. Well done. Well done. Please stand up. अच्छा अभी ना सबको ये एक्शन करना था. मैंने देखा कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से किया बट कुछ बच्चे अभी भी शाई फील कर रहे हैं. थिएटर क्लास में आप शाई फील नहीं कर सकते प्लीज. ओके सो प्लीज सिट डाउन. प्लीज सिट डाउन. लेट्स रिवाइज द एक्सप्रेशंस एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट. ओके बिकॉज नेक्स्ट सेगमेंट में हमें थोड़ा सा सोबर एक्सप्रेशंस की जरूरत है. ओके सो थोड़े सोबर एक्सप्रेशंस रिवाइज करते हैं. लेट्स स्माइल and say, what a wonderful day. Very nice. Everybody say it loud. Okay, कुछ बच्चे loud बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा. Hands here. Everybody needs to be loud. Smile, gentle smile. Okay. Hands going out. What a wonderful day. Hello, my child. ये हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के कुछ डायलॉग्स हैं जिसको हम रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं. आई मीन प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके या हेलो माय चाइल्ड, हाउ वाज योर डे? वेरी नाइस, गुड जॉब चिल्ड्रन. नाउ अभी जैसे सपोज हमारा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, और उसके मार्क्स बहुत कम आए. वो हमेशा फर्स्ट आता है क्लास में. अभी इस बार ना उसके मार्क्स कम आ गए. जैसे वो 100% लेके आता है रिजल्ट, तो इस बार उसके 95% आए हैं, कम 5% कम, और वो रो रहा है, वो परेशान है. ठीक है, तो हम उसको कैसे बोलेंगे? हमने टेस्ट पेपर उठाया, देखा, पहले तो हम डर गए. ओ माय गॉड, 5% कम, ऐसा कैसे? पहले हम डर गए. ओके फिर हमने अपने एक्सप्रेशन को छुपाया. ओके क्योंकि अगर हम अपने एक्सप्रेशंस दिखाएंगे तो वो और परेशान होगा. ओके सो हमने पेपर उठाया एंड we were like we would make a frown face. Okay, eyebrows squirt होंगी और frown, थोड़ा गुस्सा आ रहा है बट हमें गुस्से को कंट्रोल करना है. ओके और हमें कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाना. पेपर हमने वापस रख दिया. Put it down और बोलो, I see your strength. समझा? Very nice, very nice. I see your strength beyond the score. इसका मतलब ये मार्क्स से ज्यादा मुझे तुम पे विश्वास है. तुम हमेशा फर्स्ट आते हो, इस बार हो सकता है कुछ गलती हो गई होगी. इट्स ऑल राइट, पर मेरी नजर में तुम अभी भी फर्स्ट हो. ओके तो ये हमें समझा के बोलना है. I see your strength beyond the score. Come, my friend. ओके तो अभी बोलना है कि अभी हमें उसे इनकरेज करना है कि नहीं, अभी हमें और मेहनत करनी है. ठीक है,
उसके लिए हम क्या बोलेंगे? लेट्स वॉक दिस पाथ एंड डोंट लुक बिहाइंड। ठीक है, कि अभी गलती से भी होप मत छोड़ना, ठीक है? ये मत समझना कि आज मार्क्स कम आए तो कल भी कम आएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे मार्क्स इम्प्रूव होंगे, हम और अच्छा कर सकते हैं। ओके, सो चलो और पढ़ते हैं या कुछ अच्छा करते हैं, थोड़ा मूड ठीक करते हैं। लेट्स वॉक दिस पाथ एंड डोंट लुक बिहाइंड। हैंड्स, शो मी बोथ योर हैंड्स। ऐसे रास्ता दिखाओ, ये सामने रास्ता है, ऑडियंस को अपने रास्ता दिखाओ। लेट्स वॉक दिस पाथ, वॉल्यूम वॉल्यूम, एंड डोंट लुक बिहाइंड। अच्छा, जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस होते हैं ना, दे ऑलवेज कम अप विद अ क्वेश्चन, ओके, और उनको पता नहीं होता है कि उस क्वेश्चन का आंसर उनके दिमाग में ही है कहीं, ठीक है? सो हमें समझाना है, द ग्रेटेस्ट आंसर, बोलो, द ग्रेटेस्ट आंसर, seek a curious mind. Very nice. अभी क्या है, अभी हमें खड़े हो जाना है और जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी उसे फॉलो करना है, ठीक है, ताकि आपको ये डायलॉग्स लर्न हो जाए। प्लीज स्टैंड अप एवरीबॉडी। सो लेट्स डू इट। या अभी वॉक करना है पूरे रूम में। लेट्स स्टार्ट वॉकिंग। वॉक 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 वॉक। कहीं भी वॉक करो, कहीं भी वॉक करो, कहीं भी वॉक करो, कहीं भी वॉक करो। द ग्रेटेस्ट आंसर्स, जहां भी आप खड़े हो आपको वहीं पे बोलना है, ठीक है? हम स्ट्रीट थिएटर कर रहे हैं, स्टेज थिएटर नहीं कर रहे हैं कि हमें अपनी जगह पे वापस आना है और ये मार्किंग है और यहाँ पे खड़े होके बोलना है। स्ट्रीट थिएटर है। अगर आप यहाँ वॉक कर रहे हो, यहाँ पे कोई बैठा है तो उसको ही देख के आप बोलना है, आपको बोलना है, ठीक है? द स्टार्ट वॉकिंग अगेन। और सबके चेहरे अलग अलग डायरेक्शन में होने चाहिए। टीचर्स प्लीज इंश्योर कि बच्चों के चेहरे अलग अलग डायरेक्शंस में हो, कोई किसी को फेस कर रहा हो, कोई किसी को फेस कर रहा हो, एकदम अलाइंड तरीके से ना बैठे हो। ओके, लेट्स डू इट अगेन। लेट्स स्टार्ट हॉपिंग ऑन वन लेग। हॉप 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 हॉप। पूरे रूम में घूमो, चलो चलो फटाफट। हॉप हॉप हॉप, वेरी नाइस। हॉप 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 एंड फ्रीज। सीधे खड़े हो जाना है, जहां भी हो, जिसको भी फेस कर रहे हो, ठीक है? वैसे खड़े हो जाना है एंड यू हैव टू से दिस डायलॉग। द ग्रेटेस्ट आंसर्स seek a curious mind. Perfect. Now start. ये bounce होता है, okay? So we will hop and bounce, hop and bounce, hop and bounce, hop and bounce. Multiple directions. जब तक मैं देखती नहीं कि हम सब कोई अलग अलग डायरेक्शन में है, तब तक हम नेक्स्ट डायलॉग नहीं कर सकते। Come on, hop and bounce, hop and bounce, hop and bounce, hop and bounce. अब आप जहां भी खड़े हो, देखो मैं दूसरी डायरेक्शन में खड़ी हूं ना, so I'm saying together we rise. समझ में? Together we rise, together we rise. अब डायरेक्शन चेंज करो, किसी दूसरे को देखो, ठीक है? वेरी नाइस, अमेजिंग चिल्ड्रन। टुगेदर वी स्ट्राइव। देखो, राइज में हम हाथ ऊपर लेके गए थे, बट स्ट्राइव में सामने लेके जाएंगे, ठीक है? स्ट्राइव मतलब कोशिश करना, ओके? राइज मतलब आगे बढ़ना। टुगेदर वी राइज, टुगेदर वी स्ट्राइव। यू पॉइंट करेंगे, आप मल्टीपल ऑडियंस को पॉइंट करो। ऐसे देखो, अभी तो आप क्लासरूम में हो, बट जब आप स्ट्रीट थिएटर करोगे ना, तो आप मेक श्योर करना
कि आपके पास जितने भी ऑडियंस है उन सबसे कोई ना कोई इंटरैक्ट कर रहा है, वरना स्ट्रीट थिएटर और स्टेज थिएटर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हैंड्स हियर, मतलब आप वो डिफरेंस जो है उसका इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाओगे अगर आप सारी ऑडियंस को मल्टीपल डायरेक्शंस में एड्रेस नहीं करते, ठीक है। पॉइंट करना है ऑडियंस को, यू, ऐसे स्नैप करके, यू, मी एंड ऑल ऑफ अस, fully, fiercely, alive. Very nice. Clap for yourself. Okay, बैठ जाएंगे, प्लीज सिट डाउन। सो ये जो हमने प्ले किया इसमें हमने शुरू में की कॉलिंग, ओके, नंबर लेकर आओ भैया, नंबर लेकर आओ। कैन यू रिपीट? स्नैप 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 स्नैप, नंबर लेकर आओ भैया, नंबर लेकर आओ। You need to be loud. 1, 2, 3 again. नंबर लेकर आओ भैया, नंबर लेकर आओ। अपनी औकात दिखाओ, तुम अपनी औकात दिखाओ। वेरी नाइस। सो ऐसी चीजें हम को इस्तेमाल करेंगे शुरुआत करने के लिए। जैसे ही हम, ये हमारी कॉलिंग हो गई, ठीक है। सो मैं आपको पार्ट समझा रही हूँ स्ट्रीट थिएटर के। तो ये हमारी कॉलिंग हुई, हमारी ऑडियंस आ गई, ये पता नहीं कौन से नंबर लाने की बात कर रहे हैं, चलो सुनते हैं, देखते हैं, कहते हैं औकात दिखाओ, ऐसे कौन बोलता है, लेट्स गो एंड सी व्हाट दे आर टॉकिंग। वो आए, फिर हमने शुरू किया। शर्मा जी, एक बन जाएंगे शर्मा जी और उनका बेटा, ठीक है। तो वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, शर्मा जी का बेटा, वो अवार्ड लेके आया है, सर्टिफिकेट लेके आया है, नंबर्स अच्छे लेके आया है, ठीक है। तो आप में से ही आप ही लोग सेलेक्ट करोगे कि कौन शर्मा जी बनेंगे और कौन शर्मा जी का बेटा बनेगा, ठीक है। इस सेक्शन में हम दिखाएंगे कि ये अच्छे बच्चे हैं, और फिर दूसरे सेक्शन में दिखाएंगे कुछ बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर तीसरे सेक्शन में दिखाएंगे कि उस स्ट्रगल को कैसे ओवरकम करना है, कैसे फ्रेंड्स हमें सपोर्ट करते हैं, कैसे हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स हमको समझते हैं और सपोर्ट करते हैं, और फिर हम वापस से ट्रैक पे आ जाते हैं। फिर फोर्थ सेक्शन में दिखाएंगे कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, टुगेदर वी स्ट्राइव, फुली फियर्सली अलाइव, ऐसे करके हम प्ले को एंड करेंगे। और उसके बाद स्ट्रीट थिएटर में आपको एक एंडिंग मैसेज भी देना होता है कि सुन लिया भाई सुन लिया, पढ़ लिया भाई पढ़ लिया, सीख लिया भाई सीख लिया। अब ऐसा नहीं करेंगे, समथिंग समथिंग समथिंग, ओके। तो जो भी हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आप जिंगल बनाएंगे और प्ले को एंड करेंगे। सो द क्लास एंड्स हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सब आए, बहुत अच्छा लगा। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द थिएटर क्लास ऑफ विरसा। बाय बाय स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।